Hi everyone, so my name is Dheeraj and currently I'm pursuing my master's from IIT Bombay and this is just an update from ECS Academy. It's been many days, no videos are there. What is going to be ECS Academy plan ahead of this year from 2027, okay? So for GATE 2027, I'm not doing any sort of courses online, neither in recorded format nor on live classes. Though before joining IIT Bombay, I decided to do some live classes, but I was not able to execute because of my own mistake that I overburdened myself when I joined IIT Bombay. I took many courses, and that was only the reason I was not able to execute my online classes as well as finishing the courses here in IIT Bombay. So I thought of choosing, finishing the courses since I took many courses and many students were there. I mean, few of them joined me, not many. Few of them joined me, and I gave their money back as well, despite I taught the subjects. In fact, you know, though I was supposed to keep some part of money, whatever they paid, but I paid back everything so that they should not think bad about me, that Dheeraj sir was kind of wanted to have a money from them. Okay, 4,000 is not going to give me anything in my life. So wherever I was working earlier before I joined IIT Bombay, I got loss of nearly 4 lakh. Before shifting to Mumbai, I was in Bangalore, so there was everything okay. But once I shifted to Mumbai, I started falling back. Okay, so in terms of finance, basically, I got nearly 4 lakh loss. So and then I started ECS as well. The online classes I thought of conducting, but I was not able to manage both the things. And that was the reason, this year I did not announce any sort of live classes. But my plan is from 2027, once I will graduate from IIT Bombay and will start my new career in some industries, I will be hiring some of the people, those who are interested in teaching, and in fact I will start recording the courses and kind of start uploading and uh, then I'm gonna announce all sort of courses in future because since after graduating from IIT Bombay, I would be well versed in machine learning, AI, data sciences, computer science, and certainly electrical engineering does not need much effort for me to record a lecture for electronics and communication, all those things, because already I have been start teaching from past many years, right? So this year, no courses are there. Only I'm offering some mentorship. Those who are reaching out to me via LinkedIn or via YouTube, right? They are sending me messages. Dheeraj sir, I want some sort of guidance. I'm just helping them, okay, in terms of, let's say they want their test to be analyzed. They are getting stuck while solving the question, and they are already enrolled in some of the coachings, right? So and there are some students still in the group which I started off in 2025 before I joined IIT Bombay. So uh, few of them got their money back, certainly, despite I was having financial challenged. I tried giving them their whatever amount they paid, because I don't want anybody's money in my life to keep so that they should kind of think badly about me, because it was never in my mind, and I never did any sort of you know still I have a plan. Once my placement is done from IIT Bombay, and once I will join industries, the very first salary that I'm gonna get, so I'm going to whoever is still pending and they are like very good students and they are not asking now, they're not asking, right? They have asked already, and I told them, कि, I will be settling everything ahead, since you have to understand also that right now I'm just an official student of IIT Bombay, and I'm not making any sort of money from outside, and I'm not running, in fact, any sort of courses as well. Briefly, I guided this year for MTech admissions again. Yeah.
But I did not launch any sort of courses. This was only the reason. And yeah, so from 2027 and 2028, I will be returning back to teaching as well, along with my full-time job at different companies wherever I am gonna get job based on my academic performance here in IIT Bombay. Yeah, so you guys have to, I mean, those who had enrolled that year, right? Needless to worry, I'm very thankful as well. You guys are like very few, okay, very few are there. Few people are satisfied since I taught them. They got some knowledge from me, right? Some subjects they got, so they think that okay, 4K, 5K is not that is not a big amount, okay, for them. But I'm not gonna do the same. I'm going to give everyone, whether they are very close to me or whether they are very far from me, right? I'm gonna give their money back in future before I launch the course. Okay, that is my promise. So there are some people, on the internet, right? Some fake names are coming. They try to disturb me, right? I mean, they try to comment that Dheeraj sir, धीरज मिश्रा जी, राइट, फ्रॉड मत करिए, ऐसा वैसा कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग आते कहाँ से हैं, मतलब पहली बात तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही कम थे, राइट, और उनको भी पता है, प्लस मैंने इतना उनके साथ उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बताया ही है। आई हैव टॉट एनालॉग सर्किट, सिग्नल एंड सिस्टम, मैथमेटिक्स। लेकिन मेरा माइंड ऐसा नहीं था कि लाइक आई एम गोना टेक समवंस मनी एंड बस हो गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इतना ज्यादा पैसा भी नहीं लिया था, बहुत ही कम लोग थे, कुछ लोगों का मैंने पैसा रिटर्न कर दिया है, क्योंकि and that was very tough for me to return as well, क्योंकि already I got loss of nearly 4 lakh where I was working earlier with a guy, everybody knows that guy as well, and he knows also what he has done with us. So अब प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर होता, in fact still I'm waiting if someone is gonna message me in between, so I will try but not at the same time. बहुत ही कम लोग हैं, एंड जैसे ही मेरा प्लेसमेंट होता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सैलरी आई एम गोना सेटल एवरीवन, इनफैक्ट विद सम एक्स्ट्रा इफ दे वांट, राइट। अगर उनको लगता है कि धीरज सर ने कुछ भी नहीं पढ़ाया लाइफ में, है ना, और उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया, सो आई एम गोना बी असिस्टिंग देम, मतलब विद देयर मनी बैक सर्टेनली बिफोर आई लॉन्च एनी कोर्स इन फ्यूचर, जिससे उनको ये ना लगे कि धीरज सर फिर से, और भी लोग हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स तो बहुत सारे होते हैं। वो मतलब मेरे रियल स्टूडेंट सामने नहीं आते हैं, कुछ न कुछ कमेंट्स आते ही रहते हैं, फिर उनको मैं होल्ड करता हूँ, आई स्टॉप, सो दे ट्राई टू डिस्टर्ब मी। बट एक चीज मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि यार आईआईटी बॉम्बे वालों को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, है ना, यू कांट डिस्टर्ब एन आईआईटीएन, राइट, है ना। और ऐसे आईआईटीएन को जो बंदा खुद से अपने आप को बिल्ड किया है, और लाइफ में उसने आज तक ऐसा काम नहीं किया जहां पर उसका नाम, kind of people should defend about him, right? So remember, this is very important, guys. जो हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स होंगे ECS एकेडमी से जो पढ़ेंगे, है ना, दे विल बी गेटिंग गुड classes and everything right now for a while, till I get placed, it is taking a little time, okay, for me to get back to ECS. और इंडिया में ECS मैंने ही खुद चलाया है, पूरे इंडिया में अगर आप ECS टाइप करते हैं, और नाम ही ऐसा है कि आप समझ जाओगे कि क्या कैसा है। एंड बस इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि 2027 और 2028 से हमारे कोर्सेस आना चालू होंगे, फॉर CS, फॉर डेटा साइंस, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन। अभी इस साल आई एम नॉट गोना डू एनी कोर्सेस, क्योंकि मेरे पास खुद का टाइम नहीं है, और मेरे पास फिनेंस भी नहीं है कि हम किसी को हायर करके उनसे डिलीवर करवाएं कोर्स। हाँ, अगर कोई मुझसे गाइडेंस लेना चाहता है, ब्रीफली मेंटोरशिप लेना चाहता है, सो दे आर ऑलवेज वेलकम। तो अगर आप मुझे फीस देंगे तो हम वही फीस को, जिन स्टूडेंट को अभी मुझे रिटर्न करना है, सिंस few students were not satisfied, okay, like despite they studied from me, but कुछ लोगों को तो मैंने सेटल कर दिया, क्योंकि
दे वर लाइक वेरी टफ टू मैनेज इन द एंड, राइट? और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यू गाइस डू बेटर इन योर लाइफ, बी अ गुड पर्सन। ऐसा मत सोचो कि मतलब किसी का लाइफ में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार सामने वाला ऐसा होगा, है ना? डोंट मेक प्री अजम्पशंस। अगर आपका पैसा है तो यू हैव राइट टू आस्क, राइट? सर्टेनली। एंड पूरा पैसा। धीरज सर ऐसे भी नहीं है कि यार मैंने इतना सब्जेक्ट पढ़ाया, इतना मेहनत किया आप लोगों के लिए शुरू में, जितने भी महीने आई वॉज कनेक्टेड विद यू, सो आई डिड नॉट चार्ज फॉर एनीथिंग, राइट? मैंने पूरा का पूरा रिटर्न किया। अब जित जो लोगों का अभी पेंडिंग है, सो सर्टेनली इट इज टेकिंग टाइम, बट आई विल बी डूइंग दैट बिफोर आई अनाउंस न्यू कोर्सेज, जिससे किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए मार्केट में भी। जो लोग जो हमारे अपोजिशन है, वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ना, तो दे ट्राई टू डू ऑल द टाइम, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है ना कुछ करने का, बस यही सब करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, मुझे मेल लिखेंगे, ऐसा वैसा, राइट? उस सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया है ना। 2 4 10 बच्चे ज्वाइन किए थे, उसमें से मैंने बहुत सारे लोगों का मतलब, दोज हु टॉक्ड बैडली टू मी, है ना, बिकॉज ऑफ दैट 4,000 रुपीज, है ना, इतना ऐसे ऐसी बातें कि इट वॉज वेरी टफ टू डाइजेस्ट, बट ठीक है। दैट दैट वॉज माई काइंड ऑफ माई ओन मिस्टेक, दैट आई वॉज नॉट एबल टू कंडक्ट द सेशन। बस इतना ही था, बाकी ऐसा कोई मिस्टेक मैंने नहीं किया। आई वॉज रेगुलर इन टच, एंड जो भी मुझे मैसेज करते थे आई यूज टू रिस्पॉन्ड। सो ये सब होता रहता है। आई मीन तो होपफुली दे विल गेट सम गुड कॉलेज, एंड जब पढ़ाई करेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, तो उनका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा। और आई एम अ काइंड ऑफ अ मेंटोर और अ टीचर, वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करता है, दोज हु बिहेव प्रॉपरली टू मी। मतलब ऐसा नहीं है कि अब कोई मतलब बिना कुछ, अब आई एम रेडी टू गिव देम मनी बैक स्टिल, बट वो बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, राइट? ऐसा होता है, इस एज में थोड़ा सा समझ नहीं आता कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। So it's fine. So I'm very thankful to, there are some students जो अभी भी kind of in line to get their refund. So I'm gonna give them back. So अभी तो ऐसा नहीं है, so इसीलिए मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूँ जिससे किसी को ऐसा ना लगे कि धीरज सर का पर्पस मनी अर्न करना था बिकॉज फ्रॉम ECS। मेरा कोई पर्पस नहीं है। For the God's sake, I got IIT Bombay because of you guys only. I did not prepare for GATE. I just wrote GATE because I was teaching. So मेरा हो गया, और अभी प्रोफाइल अच्छी बनने वाली है, and then once I get a job, once I get a placement, so I will start giving everyone back। और in fact जो बहुत अच्छे, जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा था थ्रू आउट माई टफ टाइम, आई एम गोना हेल्प देम इन फ्यूचर एज वेल। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट जो रियली मेरे साथ हमेशा स्टैंड रहे, मतलब ज्यादा स्टूडेंट हैं ही नहीं, 2 4 10 जो भी हैं, राइट, जिनका बिहेवियर काफी अच्छा था। कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा नहीं था। एक इनफैक्ट एक स्टूडेंट था, वो मेरे स्टेट का ही था, ठीक है। I met him also in one place in my state only, and his behavior was totally adverse। मैंने उसको फिर मतलब I just gave money back क्योंकि वो मेरे स्टेट से ही था, बट I thought कि यार मैंने इतना असिस्ट किया, और यू आर टोटली बिहेविंग एडवर्सली, मतलब इतना एडवर्स बिहेवियर बिकॉज ऑफ वन गाय, है ना। एक स्टूडेंट ऐसा था, वो ग्रुप में ही लिखना चालू, ग्रुप में ही लिखना चालू कर दिया था। उसके वजह से वो स्टूडेंट भी, जो हमारे MP का बंदा था, वो भी मोटिवेट होके मुझसे बात करने लगा, ये वो जो भी है। सो मैंने सोचा ठीक है, लेट मी सेटल यू फर्स्ट। फिर अब जो लोग मुझसे मिसबिहेव करेंगे, तो सर्टेनली आई एम नॉट गोना हेल्प यू इन फ्यूचर, ठीक है। पैसा इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तुमने मुझे 4,000 दिया तो मैं तुम्हें दे दिया, ठीक है। क्योंकि 4,000 5,000 is fine, but humanity is very important, your behavior matters a lot, that determines your future, ठीक है। मेरे इतने टफ टाइम में भी मैं आज तक मेरा तो 4 लाख लॉस हुआ है, राइट, जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा था, और अभी तक मैं उस मेरा पूरा स्टाइपेंड उसी में जा रहा है, ठीक है। तो इट इज वेरी टफ टाइम फॉर मी, बट स्टिल सी आई एम स्माइलिंग एंड मेंटेनिंग, है ना, एंड आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग, मतलब, है ना। जो भी 2 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको तो मैं बहुत अच्छे से केयर करने वाला हूँ। दोज हु बिहेव्ड
प्रॉपरली टू मी। और मेरे ऊपर कंप्लीटली दे वर नॉट डिपेंडेंट, ऐसा नहीं है, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम मैनी इयर्स एंड दे हैव प्रिपेयर्ड। अब वो किस्मत का भी होता है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, अब आपका गेट में नहीं होता है तो फिर उसमें पूरा का पूरा क्लेम मेरे ऊपर डालोगे तो इट्स नॉट गुड। बट होपफुली अभी तो 2027 आ गया है एंड आई थिंक मैनी ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर गेट, है ना। जो ईसीएस के पुराने स्टूडेंट थे जिनका मैंने रिफंड कर दिया था, और जिनका हो भी गया, बहुत सारे लोगों का हुआ भी है। इनफैक्ट एक स्टूडेंट ऐसी थी, सी गॉट आईआईटी बॉम्बे एज वेल इन जीएनआर। सो मतलब दे आर ऑल ग्रेटफुल अबाउट इट, मैंने हेल्प किया है, राइट। बहुत सारे लोगों का इस साल मेरे मेंटोरशिप से आईआईटीज में हुआ। So I was in fact glad and I updated about them everywhere, ठीक है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बोलना था कि प्लीज जो मतलब जो ईसीएस के कभी भी स्टूडेंट नहीं रहे हैं, और दोज हु आर लीडर ऑफ अपोजिशन, प्लीज डोंट कमेंट रैंडमली, डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब मी, है ना। मुझे डिस्टरबेंस होता नहीं है बट थोड़ा सा फील होता है उल्टे सीधे वर्ड्स लिखना, राइट। डोंट राइट एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड्स लाइक फ्रॉड और स्कैम, है ना। ऐसे वर्ड्स यूज करना इज नॉट गुड, क्योंकि मेरे यार 10-15 लोग ज्वाइन किए तो उनके साथ मैं फ्रॉड क्या करूंगा। और मैं अभी भी पब्लिक में हूँ, यू गाइस कैन गो एंड चेक माय लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं गायब हो जाता, और 10-15 लोगों का मतलब यार जो भी 30-40 हजार रुपए व्हाट एवर इज देयर, राइट। मैंने ट्राई किया रिटर्न करने का, कुछ लोग हैं ठीक है मैनेज करेंगे, अभी नहीं है, हार्ड टाइम चल रहा है तो समझना चाहिए। बाकी मैं हमेशा रेडी हूँ हेल्प करने के लिए, है ना। और इंडिया में कितनी कोचिंग्स हैं, राइट, बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आप वहां से कोचिंग करते हैं, आपका नहीं होता। इनफैक्ट पीपल प्रिपेयर फॉर मेड इजी, एस एकेडमी, फिजिक्स वाला, जितने भी कोचिंग्स इंडिया में हैं जो अभी वेल नोन है गेट के लिए, और वहां से लोग प्रिपेयर करते हैं। या कि मेरे जिसके साथ मैं काम कर रहा था, राइट, उसके साथ जो लोग प्रिपेयर करते हैं, तो मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का अगर नहीं होता तो आप उनसे तो जाके नहीं मांगने लगते हो, है ना। एक ऐसा बंदा जो बहुत ही स्माइलिंग पर्सन है, सिंपल सा पर्सन है, उसका मतलब ऐसा है कि यार ये मौका मिल गया है, धीरज सर इज साइलेंट इनफ, वो ज्यादा बात नहीं करते हैं तो ठीक है ना, बोल लेते हैं कुछ भी। तो मेरे केस में अब ये है कि ठीक है, आई स्टार्टेड ईसीएस और मेरा ये इनिशियल फेज था, तो पीपल हैव स्पोकन अ लॉट बट फाइन, आई विल टेक केयर ऑफ दैट एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो मेरे माइंड में हमेशा ही रहता है, और मेरा लाइफ में कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना था कभी, इन फ्यूचर भी, कि आई एम गोना बी टेकिंग समवंस मनी एंड कीपिंग देम ऑफ, है ना, ऐसा कभी नहीं था। और जब भी मेरा, अब जो मेरा प्लान है 2027-8 से, कि जब भी मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, जब तक पूरा कोर्स नहीं रेडी हो जाता है तब तक मैं उस कोर्स को अनाउंस ही नहीं करूंगा, जिससे कि इन बिटवीन कोई दिक्कत ना आए स्टूडेंट्स को। और जितना मैं फुलफिल कर पाऊंगा बस मैं उतना ही प्रॉमिस करने वाला हूँ। सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ वीडियो। और इस साल थोड़ा सा आई गॉट न्यू हॉस्टल एज वेल, यू कैन सी द बैकग्राउंड थोड़ा सा नया है। सो आई विल बी कमिंग लाइव समटाइम्स एंड विल बी गिविंग द अपडेट। इनफैक्ट जब मेरा प्लेसमेंट भी हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी दूंगा, लाइव आकर के और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से भी, है ना। सो एक नाम मैं देखा था अभी रिसेंटली, उस मतलब एक अनीस अग्रवाल नाम से कोई बंदा है, ही इज कमेंटिंग, राइट, ऐसे ऐसे लाइंस लिखता है, मतलब कि ये है वो है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ईसीएस एकेडमी, यू नेवर बीन, राइट, बट स्टिल यू आर राइटिंग दोज थिंग्स, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन माई चैनल और इन माई लाइफ, है ना। आप अपना काम करो यार, क्यों सामने वाले को मतलब कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल इशू है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है, यू कैन डायरेक्टली टॉक विद मी, राइट, बट डोंट राइट एनीथिंग ऑन यूट्यूब चैनल्स, ठीक है।
ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखोगे कोई स्टूडेंट मुझे कुछ भी बोलेगा तो हो गया, क्या है, ठीक है। अरे यार, इंडिया में कितने लोगों को कौन क्या 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 नहीं बोलता है, राइट? तो इट इट हैपेंस। और मैंने ईसीएस स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ तो मुझे फेस करना ही पड़ेगा। स्टार्ट में थोड़ा बहुत इश्यूज आते हैं जब आप कोई भी काम चालू करते हो, और लाइफ में दिक्कतें आती हैं। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि मैं बैंगलोर से मुंबई आऊंगा तो आई विल स्टार्ट फेसिंग फाइनेंशियल चैलेंज, है ना। जो भी प्रोमिसेस लोगों ने किया था कि धीरज सर आ जाइए, हम पूरा मुंबई में ही घर खरीद लेंगे, ये कर देंगे, वो मतलब इतना टाइम वेस्ट होता था इस कन्वर्सेशन में कि मुंबई में घर ले लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो इसी में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। एंड आई लेटली रियलाइज दैट कि ये सब फैंटेसीज हैं। आप खाना नहीं खाओगे तो यार आपका पेट नहीं भरने वाला है, ठीक है। तो पीपल आर देयर, है ना, दे हैव रियली डन जो भी आप लोग वर्ड्स यूज करते हो विद मैनी स्टूडेंट्स। सो उनसे कोई रीच आउट नहीं करता, और 1 रुपए वो रिटर्न भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वो तो कम से कम हजारों लोगों का पैसा ले लिए होंगे। बट मेरे केस में यार 8 से 10 स्टूडेंट जिनका मैंने बहुत लोगों का रिटर्न भी कर दिया विथ हैप्पीनेस। ऐसा नहीं है कि मैंने यार एनालॉग पढ़ाया, सिग्नल पढ़ाया, ये किया वो किया तो मैं बोलूँ कि नहीं यार, तुमने मुझे 4,000 दिया है तो मैं तुम्हारा 2,000 ही दूंगा, ऐसा नहीं। मैंने पूरा दिया। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे भी थे जो जिन्होंने बहुत उल्टा सीधा बात किया मुझसे, बट स्टिल आई रिटर्न देम। हर साल कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते ही हैं, थोड़ा सा एजिटेशन उनके अंदर आ ही जाता है। यार स्टूडेंट ऐसे हैं यार कि मतलब रेजिग्नेशन हो गया यार, है ना, मतलब। और उसी भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि, है ना, तो उनको पुश मिल जाता है। तो ये थोड़ा हो जाता है जब यार धर्मेंद्र प्रधान लोग रेजिग्नेशन दे दिए, तो मैं तो एक नॉर्मल फैकल्टी हूँ, फैकल्टी था पहले, ठीक है। तो सो प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब्ड एंड डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब एज वेल, मतलब दोज हु वर नेवर बीन अ पार्ट ऑफ ECS Academy. Dheeraj sir will be coming back on ECS platform again, and he will teach everything, okay? और everything is gonna be good, है ना। सबका लाइफ में प्रॉब्लम आता है, मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ, राइट, और मैंने फेस किया लॉस, एंड स्टिल आई एम रिग्रेटिंग, ओके। सो एज अ टीचर आई एम फुली ग्राउंडेड एंड मतलब डाउन टू अर्थ हूँ, है ना। आई एम ऑलवेज पब्लिकली अवेलेबल, आप मुझे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई विल बी परसुइंग इन फ्यूचर, एंड एवरीथिंग इज गोना बी गुड, ऑल राइट, है ना। सो जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, कुछ एक स्टूडेंट था ऐसा, ही वाज आई थिंक मिश्रा के, किस काम, सम मिश्रा इज देयर, ही सेड धीरज सर प्लीज, आपने मुझे पढ़ाया है, एनालॉग पढ़ाया, सिग्नल पढ़ाया, मैंने तो आपको 4K ही पे किया था यार। मतलब मुझे कोई इशू नहीं है। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट मी, क्योंकि उनको पता है यार एक बंदा है जो आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट से रियल में पढ़ाई कर रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड देन ही इज डूइंग मशीन लर्निंग एंड एआई मैथमेटिक्स, जो कि पूरी पूरी तरह से अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पूरी तरह से अलग है, राइट। तो उनको ही पता है यार कि बंदा इतना मेहनत कर रहा है तो कुछ तो अच्छा किया होगा लाइफ में ना, ऐसे थोड़ी हो जाता। और इतने स्टूडेंट्स का आईआईटीज में एडमिशन हुआ है मेरे वजह से, मैंने हेल्प किया है, राइट। सो गॉड इज देयर टू हेल्प मी आउट एज वेल, है ना। तो कुछ होते हैं, कुछ मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, दे टॉक ऑल द टाइम, कुछ भी आके कमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना। तो प्लीज जस्ट डू योर बिजनेस गाइस। हमारे स्टूडेंट को अगर कोई इशू आएगा तो मुझे रीच आउट कर लेंगे, धीरज सर मुझे चाहिए, अभी दे दीजिए, मैं तुरंत अरेंज करूंगा, डिस्पाइट देयर इज अ फाइनेंशियल चैलेंज, ठीक है, उसका इशू नहीं है। बट होपफुली दे अंडरस्टैंड, उनको पता है कि धीरज सर पैसा लेके नहीं भागेंगे, है ना। जिनका जो भी पैसा 2-4 लोगों का, 5 लोगों का है, तो उनको हम पर्सनली देंगे, है ना। और उनसे बात भी करेंगे जब मेरा अच्छा टाइम आ जाएगा, अभी मेरा अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। और आई विल बी हायरिंग आल्सो मैनी पीपल on ECS Academy to teach in future. सो दिस इज माई प्लान, 2027 से हमारा फुल कोर्स आएगा, 28 फिर आगे चलता ही रहेगा हमेशा, ठीक है।
अभी थोड़ा सा इशूज हुआ था 2027 से मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्स कर लिए आईआईटी बॉम्बे में आकर, 7 कोर्स इन फर्स्ट सेमेस्टर, 9 कोर्स इन सेकंड सेमेस्टर, और फिर इस सेमेस्टर में भी कुछ कोर्सेज कर रहे हैं क्योंकि नए नए कोर्सेज ऑफर होते हैं तो हम आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू टेक देम, राइट। फिर इस कारण से आई एम नॉट अनाउंसिंग एनी सॉर्ट ऑफ कोर्सेज, लेकिन एक मेंटोरशिप अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, और जो भी स्टूडेंट्स कुछ भी फील करता है दे कैन डायरेक्टली राइट टू मी, टॉक टू मी, है ना, जो भी वट एवर ही फील्स अबाउट मी, राइट, ही कैन जस्ट सेंड मी, हाय धीरज सर, ऐसा ऐसा है, आई वॉज द फुल टाइम स्टूडेंट ऑफ यू एंड मैंने इतना फीस पे किया था, तो ठीक है, हमें अभी चाहिए, तो मैं प्लान करूंगा अरेंज करने का, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि थोड़ा सा अभी प्लेसमेंट का मैं प्रेप कर रहा हूँ, एंड वंस द प्लेसमेंट इज डन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये बोलोगे धीरज सर आपने, मैंने 4K पे किया था, आप मुझे जिंदगी भर पे करो, तो ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इट इज नॉट फेजिबल, बट यस आपका जो पैसा है, जो भी आपने स्पेंड किया मेरे ऊपर, आपको लगता है कि धीरज सर ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया आपके लाइफ में, मेरे वजह से आपके लाइफ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, आपने एनालॉग नहीं सीखा, सिग्नल नहीं सीखा, आपने मुझसे कोई भी नॉलेज नहीं लिया, मैं ऐसा मान करके आपको पूरा का पूरा, जो भी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट एक स्टूडेंट मेरा है उसने आईएएस मेंस तक गया, दे नेवर आस्क्ड मी सर प्लीज, बिकॉज दे लर्न फ्रॉम मी समथिंग, राइट। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरों से मोटिवेट होके मुझे काफी, है ना, तो इट हैपेंस विद एवरी टीचर, राइट, नॉट ओनली विथ मी, एंड मैं तो कोई इतना पॉपुलर टीचर भी नहीं था पहले और अभी भी नहीं हूँ, एंड आई डोंट वांट टू बिकम पॉपुलर एज वेल, आई वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है। सो बस ज़्यादा टाइम अब नहीं लेंगे, 26 मिनट हो चुका है। सो दोज हु आर फ्रॉम मुंबई गाइज, यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम टू आईआईटी बॉम्बे, हम, और आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्टली कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर लाइफ कि करना क्या चाहिए, आप 2027 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि धीरज सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी इनफैक्ट जिनका मैंने पैसा रिटर्न भी कर दिया है वो लोग भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि धीरज सर अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करना है, तो आई वुड बी हेल्पिंग देम आउट, है ना, चाहे वो मुझे कुछ भी बोले हो पास्ट में, डजेंट मैटर, राइट, क्योंकि वो एज होती है एंड एवरीवन, you know, they don't think before they speak whatever they speak, right, so it's fine, it happens. So मिलते हैं another वीडियो में, ऑल द बेस्ट, आई एम वेरी ग्लैड कि नया हॉस्टल मिल गया, और आगे की जर्नी देखते हैं क्या होती है, आई विल बी अपडेटिंग फ्रॉम ECS Academy, ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2027 गाइस, और या कीप चेकिंग द कम्युनिटी पोस्ट एज वेल, मैं उसी में अब थोड़ा बहुत अपडेट करता रहूंगा, और किसी दिन प्लान होगा तो मैं गेट का जो सिलेबस है 2027 का, वेबसाइट है उसका टूर करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से, एंड हमारे जो लास्ट ईयर एनरोल्ड स्टूडेंट थे, प्लीज बी अश्योर्ड दैट धीरज सर इज नॉट गोना टेक योर मनी, मैं कभी भी नहीं लेने वाला हूँ, जो भी 2-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, राइट, आप लोगों को सबको हम इनफैक्ट थोड़ा सा ऐड करके भी दे देंगे इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, अगर आपने जो भी पे किया था। इनफैक्ट ECS Academy की इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं थी, आई स्टार्टेड फ्रॉम 8,000 रुपी कोर्स, वो भी लाइव मैंने अनाउंस कर दिया था, फिर कुछ लोगों को मैंने 4K में दिया था, राइट, है ना, बहुत गाइड भी किया, ऐसा नहीं है, शुरू में मैंने गाइड किया, और इनफैक्ट आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली सॉल्विंग देयर डाउट्स, जो भी मुझे पर्सनल मैसेज करते थे, क्योंकि ग्रुप में तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती नहीं थी, बट वही होता है कि जब आपका गेट नहीं निकलता है, आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा माइंड में एजिटेशन आता है, और आपको एक ऐसा पर्सन मिलता है जिसको आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अब ही हैजंट कंडक्टेड लाइव क्लासेस, तो अब बोलेंगे तो है ही, धीरज सर क्या ही बोलेंगे, राइट, तो हाँ, इन माय केस इनफैक्ट अगर मेरी गलती भी नहीं होती तब भी मैं नहीं बोलता कुछ भी, क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो मतलब ये सब चीजों में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मैंने लाइफ में ये सब किया ही नहीं है, एंड आई एम अ टीचर, सिंपल टीचर, राइट, आई वाज अ सिंपल एजुकेटर, सो ठीक है, और मैं कोई इतना बड़ा टीचर नहीं बना था पहले,
So I'm gonna be meeting later in some videos, ठीक है? और yeah, stay in touch and be in touch via WhatsApp or LinkedIn, right? Thank you.